I welcome to all the students of class 9. In this video, students, we will start from question 4 onwards of exercise 8.2 of chapter number 8 quadrilaterals. Question number 4 is that ABCD is a trapezium. ABCD एक trapezium given है आपको, in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is midpoint of AD. E midpoint है AD का. A line is drawn through E parallel to AB. It is given that AB is parallel to DC and a line is drawn through E. एक लाइन ड्रॉन की गई है थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट BC एट F. देन प्रूव दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ये हमें प्रूव करना है. गिवन क्या है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. EF इज पैरेलल टू AB. व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव करना है हमें कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ये हमें प्रूफ करना है. नाउ द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, फर्स्टली इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD and EG is parallel to, and EG is parallel to AB. Dear students, as EF is parallel to AB and DC is parallel to, and DC is parallel to AB, so this implies EF parallel DC parallel AB. तीनों क्या हो जाएंगे? ये पैरेलल हो जाएंगे. एंड लेट डायगोनल BD इंटरसेक्ट EF एट G. अगर G पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो EG पैरेलल होगा AB के. क्यों? क्योंकि EG इज द पार्ट ऑफ EF का ही पार्ट है. तो EG पैरेलल होगा AB के. तो मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से वी कैन से दैट G इज मिड पॉइंट ऑफ BD बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से G is midpoint, G is midpoint of BD. G midpoint हो जाएगा किसका? BD का. Now in triangle BCD में G is midpoint of BD and GF is parallel to DC. They all are parallel, so GF is parallel to DC also. In triangle BCD में G is midpoint of BD and GF is parallel to DC, so F is midpoint of BC. By which theorem? By converse of midpoint theorem. By कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, क्वेश्चन 5, इन ए पैरेललोग्राम ABCD देयर इज अ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है. ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD. E मिड पॉइंट है AB का, मीन्स ये इसके इक्वल है, एंड F मिड पॉइंट है CD का. F मिड पॉइंट है CD का, ये गिवन है आपको. F इज मिड पॉइंट ऑफ CD. देन show that line segment AF and CE
trisect the diagonal BD. प्रूव ये करना है, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q. क्या प्रूफ करना है कि BQ इक्वल QP इक्वल टू PD, ये हमें प्रूफ करना है. देखिए, टू प्रूफ करना है BQ इक्वल QP इक्वल PD. गिवन क्या है? You will write down the given also. ABCD is a parallelogram and E and F are midpoints of side AB and DC. तो proof I am going to start. As ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram है और in a parallelogram as we all know that opposite sides are equal and parallel. Opposite sides equal भी होती हैं और parallel भी होती हैं. This implies AB equals to DC and AB is parallel to DC also. Divide both sides by 2. Divide both sides by 2. क्यों डिवाइड करने जा रहे हैं? क्योंकि E और F क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट्स दे रखे हैं. तो AB अपॉन 2 इज इक्वल्स टू DC अपॉन 2 एंड AB पैरेलल DC के है तो AE पैरेलल किसके हो जाएगा? AE पैरेलल किसके हो जाएगा? CF के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि AE एंड CF दे बोथ आर द पार्ट ऑफ AB एंड DC. सो दैट इफ AB पैरेलल टू DC, सो दैट वी कैन से दैट कि AE इज ऑल्सो पैरेलल टू CF. हाफ ऑफ AB वी कैन टेक AE और वी कैन टेक BE, बट हियर वी आर गोइंग टू टेक AE हियर. हाफ ऑफ AB क्या लेने जा रहे हैं? AE. सिमिलरली हाफ ऑफ CF क्या लेने जा रहे हैं? AE CF लेने जा रहे हैं एंड AE पैरेलल CF. माय डियर स्टूडेंट्स, here we are observing that AE is parallel to CF and AE equal to CF. AE CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर equal and parallel. So AECF is a parallelogram. AECF क्या होगा? parallelogram हो जाएगा. And in a parallelogram as we all know that opposite sides are parallel as well as equal also. So EC parallel होगा किसके? EC parallel होगा किसके? AF के. नाउ इन ट्रायंगल ABP में, इन ट्रायंगल ABP में फर्स्ट E is midpoint of AB and EQ पैरेलल है AP के. This implies Q is midpoint of BP. By which theorem? By converse of midpoint theorem से. By converse of midpoint theorem से we can say that कि Q is midpoint of BP. This implies BQ equals to QP. This is the equation number 1. Similarly, another triangle, in triangle CDQ में F is midpoint of DC and CQ is parallel to PF. This implies P is midpoint of QD. By same theorem से, by converse of midpoint theorem से, this implies QP equals to PD. This is the equation number 2. From 1 and 2 से we can say that BQ equal to QP equals to PD. What is the means? It means that BQ equals to QP equal to PD. It means that line segment AF and EC trisect the diagonal BD. This implies line segment AF and CE
trisect BD. It was the solution of question number 5 of exercise 8.2. Now the question number 7 is that question number 6. Question number 6, show that line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. A quadrilateral is given. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके PQRS मिड पॉइंट्स हैं साइड AB, BC, CD और AD के. तो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनी, अपोजिट साइड AB और CD के मिड पॉइंट P और R को ज्वाइन करके लाइन बनी PR, एंड अपोजिट साइड AD एंड BC के मिड पॉइंट S एंड Q को ज्वाइन करके अनदर लाइन सेगमेंट बनी SQ. वी हैव टू प्रूव दैट दीज लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब OP को OR के इक्वल प्रूफ करना है, OQ को OS के इक्वल प्रूफ करना है. तो कंस्ट्रक्शन में वी कैन ज्वाइन, इन सबको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, और AC को भी ज्वाइन कर दिया. हेयर कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन PQ, QR, RS, SP and AC. Proof. My dear student, as we all know that in question number 1 already we have proved that PQRS is a parallelogram. So firstly what we have to do here? Firstly prove that PQRS is a parallelogram. पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ऑल्सो इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स OP किसके इक्वल हो जाएगा, OR के, एंड OS किसके इक्वल हो जाएगा, OQ के. यही हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर लास्ट 7. क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C. एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और राइट एंगल है C पर. ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है C पर. ए लाइन सेगमेंट थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB. AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है M. पैरेलल टू BC एक लाइन सेगमेंट ड्रॉन किया गया है थ्रू M पैरेलल टू BC, इंटरसेक्ट AC एट D. देन प्रूव दीज 3 रिजल्ट्स. हमें प्रूव करना है कि D मिड पॉइंट है AC का फर्स्ट पार्ट में, MD परपेंडिकुलर है AC पर सेकंड पार्ट है, एंड थर्ड पार्ट में CM इक्वल MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हमें प्रूव करना है. नाउ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्टली इन ट्रायंगल ACB में M मिड पॉइंट है AB का एंड MD इज पैरेलल टू BC. देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से वी कैन से दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. इन ट्रायंगल ACB में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC. देन D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AC के. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. पार्ट नंबर सेकंड, माय डियर स्टूडेंट्स, एज MD पैरेलल है BC के, दिस एम्प्लाइज एंगल ADM इक्वल होगा एंगल ACB के, ईच 90 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कौन सा एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स.
दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी 90 हो गया. व्हाट इज द मीन्स बाय, सो जब ये 90 हो गया, एज ADC इज ए स्ट्रेट लाइन, तो सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर से. ऑल्सो एंगल ADM प्लस एंगल CDM इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर. लीनियर पेयर से, बट ADM कितना है 90 है, प्लस CDM इज इक्वल्स टू 180. उधर जाके माइनस कर दीजिए. फाइनली CDM की वैल्यू क्या आ गई है 180 माइनस के 90 इक्वल टू 90. इट मीन्स दैट MD इज परपेंडिकुलर AC. इसका मतलब MD AC पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर. पार्ट नंबर 3, CM को ज्वाइन कर दीजिए. एक्चुअली हमें प्रूफ करना है AM CM के इक्वल है, और AM एंड CM they both are the part of these two triangles. So firstly we have to prove that these two triangles are congruent. दोनों में congruency लगाइए. In triangle ADM, in triangle ADM and triangle CDM में first MD side is common, MD equals to MD, common side. Second, angle ADM equal to angle CDM, each 90. And third one AD equals to CD. Proved in first, D is midpoint of AC. तो by SAS से triangle ADM is congruent to triangle CDM. Both triangles are congruent. Then by CP/CD से AM equal to CM. But M is midpoint of AB, so AM equals to half of AB we can write also. So also, but AM equals to half of AB, so hence AM equals to CM equals to half of AB. My dear student, today we have done the chapter 8, quadrilaterals. Very soon you are having the exam, so revise for your exam. Thank you. Have a good day.